Hello students, today we will see new topic number 7, bills of exchange. Into this topic we see theoretical parts. Generally only theory questions asked into this topic and one small specimen of bills of exchange. Today we see the meaning of bills of exchange, necessity of bills of exchange, how to transactions we will pass in our accounting transactions, and some important concept now we will discuss into this topic, bills of exchange. But before we have seen the meaning of bills of exchange. Bills of exchange means it is an instrument. It is a written instrument. It is an acknowledgement of our transactions. Negotiable Instrument Act 1881. We see into this topic. And also we see 4 types of transactions. Nearby 3 types of transactions: cash transactions, credit transactions, and barter transactions. Barter transactions means an exchange of one thing against another thing is called as barter transactions. Cash transactions means there are types of transactions. We purchase some goods, we sell some goods, we buying some goods, we pay payment immediately to that situations. That types of transactions is called as cash transactions. Credit transactions means in these transactions, we pay our amount, we pay our bill after next day, future date. It is called as credit transactions. Into Hindi we see रोकड़ व्यवहार या नकदी व्यवहार से कहते हैं, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कहते हैं उधारी के व्यवहार, और बार्टर ट्रांजेक्शन को कहते हैं वस्तु विनिमय व्यवहार, वस्तु विनिमय लेन देन, वस्तु के बदले वस्तु देना. सपोज वी परचेस चेयर्स, अनदर पर्सन गिव यू योर टेबल. जिसके पास ज्यादा वस्तुएं, जिसके पास ज्यादा थिंग्स है, जिसके पास कम थिंग्स है, वो थिंग्स को देकर थिंग्स लेगा, यानी एक गुड्स देकर दूसरा गुड्स परचेस कर लेगा उसके साथ. That types of transaction is called as barter transactions. But today we did not see into these types of transactions. ये transactions आजकल आपके व्यवहार में, लेन देन में आप करते नहीं. It is excluded in our business. ये व्यवहार में आप करते. So our business we see cash transactions and credit transactions mostly, because these transactions is most important transactions when you pass the entry. So we see the monetary transactions and non-monetary transactions. We are classified transaction into 2 ways. Monetary transactions, we see money transactions into these transactions, cash transactions and credit transactions. And non-monetary transactions we see one types, barter transactions. So cash transactions and barter transactions. Into this topic we see introduction, meaning and definition, and some important format of bills of exchange and parties of bills of exchange: drawer, drugee, and pay. So before we see business, the business involves goods and services. Into business, the goods and services are involved
when you pass the transactions, cash transactions and credit transactions. Credit transactions means payment will be made in the future. It is known as credit transactions. Credit transactions play significant role in the world of business. So credit motivates the customer to increase the amount of their spending. So these transactions is most important transactions in our accountancy. These two transactions is most important. Cash transactions as well as credit transactions is also important in our business. So into this topic we discuss the bills of exchange. There are two types of bills, trade bill and accommodation bill. In our 12th commerce, generally we see trade bill only. Accommodation bill जो है आपको एग्जाम में नहीं आता है. Only trade bill we should be discussed now into this topic. In 1970 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब हिस्ट्री देखते हैं तो 1970 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी आरबीआई ने 1970 में एक न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज मार्केट, एक प्लान मार्केट में लाया 1970 में. इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज द्वारा, इस न्यू प्लान द्वारा उन्होंने जो ट्रांजेक्शन्स थे, लेन देन के व्यवहार बिजनेस के अंदर के, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज द्वारा करने के लिए 1970 में एक नया विपत्र बाजार में लाया. विपत्र बाजार उसे कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मार्केट. तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ आवर डेब्ट्स. अपना जो कर्ज है उस कर्ज का एक दस्तावेज है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो दैट इज अ डेब्ट्स डॉक्यूमेंट्स उसे कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को. इनटू दिस टॉपिक वी डिस्कस दिस ट्रांजेक्शंस, मोस्टली क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ये शॉप ओनर होता है. यार टू इंपॉर्टेंट पर्सन इज हियर. सपोज दिस इज आवर शॉप, ये आपकी शॉप है. और ये शॉप, ये सेलर है. इनटू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेलर इज क्रेडिटर्स, इज ए क्रेडिटर, and customer for you, it is a customer. कस्टमर यानी ग्राहक, अब उसे कहते हैं उपभोक्ता. इसे उपभोक्ता कहते हैं आप, कंज्यूमर. ये आपका कंज्यूमर है, कस्टमर. कस्टमर इज ए बायर. ये आपका क्या है, खरीदार है आपका. ये बेचने वाला इसे वेंडर कहते हैं, और ये आपका बायर है. ये आपका विक्रेता है, ये आपका खरीदार आपका है, इसमें होता है. सो कस्टमर पेड कैश टू द शॉप ओनर. कस्टमर पेड कैश. कस्टमर क्या करता है, कैश पेड करता है. एंड बायर क्या करता है, सेल ऑफ गुड्स. सेल ऑफ गुड्स टू आवर कस्टमर. कस्टमर को क्या करता है, गुड्स सोल्ड करता है, बेचता है. Into these transactions we have seen here are two types of transactions generally you see, cash transactions and credit transactions. ये दो प्रकार के बार इन दोनों में होते रहते हैं हमेशा, बायर और सेलर के बीच में. इट इज अ बायर, इट इज अ कस्टमर, इट इज फॉर यू, एंड दिस इज द शॉप ओनर. ये आपका शॉप है, शॉप ओनर है. इट इज अ सेलर, इट इज अ बायर. द टू persons are play important role in our bill of exchange. इसमें जो पार्टीज होती है, ड्रावर, ड्रावी
and pay. Pay means third party, third persons. Draw means who draw the bill. जो बिल निकालता है उसे ड्रॉ कहता है. Accepted the bill is called drawing. Whom bill is which we draw, it is called drawing. And pay is the third persons, उसे कहा जाता है. So into these transactions we have seen goods and services. We have seen into these two persons, buy some goods, purchase some goods, selling some goods. Into these transactions we have seen mostly credit transactions we are recording into our business activities. When we maintaining our accounts, we see 11th standard types of subsidiary books. How many types of subsidiary books? Nearby 8 types of subsidiary books. Which name of them? Purchase book, sales book, purchase item book, sales item book, bills receivable book, bills payable book, cash book and general proper. General proper book. There were 8 types of subsidiary books we have discussed now into last year 11th commerce. So into this subsidiary books means subdivision of general. एक जनरल एंट्री का सब डिवीजन है subsidiary books. Into these books we should pass our entry mostly credit transactions. Generally accounting entries will be made when only credit transactions are recording into this bookkeeping and accountancy. Generally accountancy will pass the entry only credit transactions. Cash transactions are not recorded into our bookkeeping and accountancy. Because separate books we have maintained the cash transactions, cash book. When you see the 8 types of subsidiary books, cash book, we see write down every cash transactions into this that book, into this book. It is called cash book. कैश ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट कैश बुक है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए आपके पूरे अकाउंट्स होते हैं. परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेस रिटेन अकाउंट है. जितने आपके ट्रांजेक्शन्स आपके हो रहे हैं उस थिंग्स के उस टाइप के आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, कैश है, जितने एसेट्स है, लायबिलिटीज के नाम से आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. यानी ओनली इन शॉर्ट ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इनटू दिस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इनटू आवर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो वी शुड मेंटेन सेपरेट कैश बुक. कैश ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास कैश बुक होता है. राइट डाउन एंट्री टू डायरेक्टली इनटू दिस बुक. इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शंस. बट बिजनेस आपको रन करना है तो आपको दोनों टाइप के ट्रांजेक्शंस इज पॉसिबल. कैश ट्रांजेक्शन भी आपको चाहिए और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आपको चाहिए. विदाउट कैश बिजनेस कैन नॉट रन. विदाउट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस बिजनेस कैन नॉट रन. So these two types of transactions is play most important role in our accountancy, in our business, in our transactions. So into this theoretical lesson, bills of exchange, उसे कहते हैं विपत्र हिंदी में, या उसे कहते हैं हुंडी इन इंडिया. भारत के अंदर उसे हुंडी कहा जाता है. So before we see the credit transactions के वक्त we should pay the amount of our transaction in future date. It is called credit transactions. Credit transactions play a significant role in our world of business, and cash transaction is also play a significant role in our business. But into this bills of exchange we see credit transactions play a significant role in world of business. To avoid any conflict or misunderstanding about the payment, or instrument of credit like a bill of exchange and promissory note are issued. promissory note को क्या कहते हैं? वचन पत्र. एक बायर एक सेलर को देता है या एक सेलर उसके अगले सेलर को देता है. यानी वी सी द बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल में क्या होता है? एक होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, ये साइकिल आपका बिजनेस है.
बिजनेस साइकिल कैसा होता है देखो, बिजनेस साइकिल देखेंगे थोड़ा, उसमें आपको समझ में आएगा। बेसिकली टू दिस बिजनेस साइकिल, आपको जो साइकिल है बिजनेस की, जो साइकिल में चलता है, साइकिल ऑफ बिजनेस, cycle of business. Into this business we see first cycle is trader. Trader के बाद after we see manufacturer. मैन्युफैक्चर के बाद आपका होता है होलसेलर, होलसेलर के बाद क्या होता है आपका रिटेलर, होलसेलर, रिटेलर एंड यू कस्टमर, इट इज अ कंज्यूमर, आपका कस्टमर, ट्रेडर टू कस्टमर, दिस इज आवर साइकिल। ट्रेडर सेल देयर गुड्स टू मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर सेल देयर गुड्स टू होलसेलर, होलसेलर सेल देयर गुड्स रिटेलर, रिटेलर सेल देयर गुड्स टू कस्टमर, इट इज आवर कस्टमर, it is our business party, it is businessman, it is shop, it is seller, it is a creditors, is called as creditors, he is a buyer, it is called debtors, or he is a debtors and he is a creditors. So business involve exchange of goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज आर इन्वॉल्व इनटू आवर बिजनेस, बिजनेस में आपको गुड्स एंड सर्विसेज ये दो इसमें इन्वॉल्व होती है। सो इनटू द ट्रांजेक्शंस वी डिस्कस नाउ, फॉर एग्जांपल हाउ टू पास द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। इनसे पूरे ट्रांजेक्शंस कैसे होते हैं बिजनेस के अंदर, मोस्टली क्रेडिट होते हैं, उधारी पे होते रहते हैं। तो हाउ टू पास आवर एंट्री इनटू दैट सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस इन आवर बिजनेस, बिजनेस में आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, उसे कहते हैं उधारी के व्यवहार। ये जो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है मोस्टली सेलर, सेलर मीन्स शॉप ओनर, ही इज ए सेलर, ही इज ए क्रेडिटर्स, इनटू दैट ही इज ए वेंडर, विक्रेता उसे बोलते हैं। और दूसरा जो होता है आपका बायर है, आपका कस्टमर, कस्टमर ही इज ए डेटर्स, he is a debtors, customer is a debtors, seller is a buyer. Into these two person, seller and buyer, he is a creditors, he is a debtors. The specific period he pay amount into this creditors, into that seller. That types of transactions is called as credit transactions. So into this credit transactions, customer and seller, into this credit transactions, seller would like to buyer, seller would like to that buyer, debtor should be, buyer is a debtors. The debtor should be, the debtors given a written acknowledgement of debts in form of written acceptance of order to pay the debts after a specific period. Such written order accepted by the buyer, pay the debts after a specific period. The such written order accepted by the buyer and sent to the seller is sent some acknowledgement to the buyer, and buyer promised to the seller he acceptance order to pay the debts after the specific period. Such written agreement, इसमें जो रिटर्न एग्रीमेंट आपका होता है, रिटर्न एग्रीमेंट एक लेखीकरण उसमें होता है बायर और सेलर के बीच में। रिटर्न एग्रीमेंट accepted by buyer, he accepted the written agreement, accepted by buyer, and sent to the seller,
इज नाउन एज बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे कहते हैं इज नाउन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसे कहते हैं विपत्र, उसे कहते हैं हुंडी। इट्स कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट्स अ रिटर्न एग्रीमेंट, इट इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक माध्यम होता है, किस माध्यम द्वारा जो बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मोस्टली बाइंग एंड सेलिंग सम गुड्स, तो उस व्यवहार करते हो, कैश ट्रांजेक्शन्स के व्यवहार नहीं होते, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में व्यवहार मोस्टली होते रहते हैं। फ्यूचर डेट बायर पे अमाउंट हिज अमाउंट टू दैट पर्सन सेलर, seller sent to the buyer notice and notice accepted by buyer and he sent to the seller. It is called, that type of return instrument is called as bills of exchange, उसे कहते हैं bills of exchange। The return order accepted by buyer, इसमें क्या होता है, ये जो सेलर जो होता है, जो रिटर्न ऑर्डर निकलता है लिखित स्वरूप में, एक चिट्ठी लिखता है कि इतना इतना आपका परचेस किया, इतना इतना पैसा आपके पास बाकी है, वो रिटर्न में देता है, उसको एक चिट्ठी पर लिख कर देता है। इट इज अ पार्ट ऑफ our transactions. So into these transactions we see return order accepted by buyer, return order accepted by buyer, return order जो आपका होता है, ये return order accepted by buyer, return order accepted by buyer, accepted by buyer, accepted by buyer, return order accepted by buyer and sent to the seller। ये क्या करता है, सेंड टू द सेलर, सेलर को सेंड करता है, भेजता है, सेंड टू द सेलर, सेलर इज आवर क्रेडिटर्स, सेंड टू द सेलर, सेलर यानी शॉप ओनर, शॉप मालिक को भेजता है, सेंड टू द सेलर इज नाउन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इज नाउन एज बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। यानी इन शॉर्ट सेलर क्या करता है, जो उसने परचेस किया है, बाय किया है, बायर को एक चिट्ठी लिखता है। ये चिट्ठी जो होती है, ये जो कागज जो होता है आपका, ये पीस जो होता है, टुकड़ा जो होता है कागज का, पीस ऑफ पेपर, पेपर पीस, पेपर का जो छोटा टुकड़ा होता है, इट इज मोस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ट्रांजेक्शंस। इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी उधारी का व्यवहार होता है, उधारी व्यवहार उसमें होता है दोनों के अंदर। ही पे दैट अमाउंट ऑफ सेलर आफ्टर फ्यूचर डेट, 2 दिन, 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, या 90 डेज के बाद, या 60 डेज के बाद, ही प्रॉमिस टू द सेलर, ये बायर क्या करता है, ही प्रॉमिस टू द सेलर टू पे देयर डेब्ट्स, पे देयर अमाउंट्स इन फ्यूचर डेट। सो ही गिव द रिटर्न ऑर्डर, सेलर क्या करता है, फिर रिटर्न ऑर्डर निकलता है, जो बिल उसका होता है, वो बिल उसको भेजता है। ही एक्सेप्ट द बिल, ही एक्सेप्ट द बिल होता है, ठीक है। ही प्रॉमिस टू दैट पर्सन, ही प्रॉमिस टू द वेंडर, ही प्रॉमिस टू द क्रेडिटर्स, ही प्रॉमिस टू द सेलर कि फ्यूचर डेट आई विल पे योर अमाउंट। दैट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड एज known as bill of exchange. It is a return acceptance by seller, return order accepted by the seller sent to the seller, return order accepted by the buyer sent to the seller is known as bill of exchange। यानी ये जो पीस ऑफ पेपर आपका है, कागज का जो टुकड़ा आपका होता है, इसके ऊपर लिखा जाता है 10,000 रुपीज, सपोज टोटल अमाउंट लिखता है 10,000 रुपीज, एक्सप्लेनेशन अबाउट पर्टिकुलर कॉलम में आप लिखता है डिटेल्स में क्या क्या उसने परचेस किया, अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, पूरा डिटेल प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर लेता है। ही सेंड टू द कस्टमर, इट इज कॉल्ड रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर एक्सेप्टेड बाय बायर। ये जो सेलर ने जो रिटर्न ऑर्डर निकाला हुआ है, सपोज 10,000 का आपका ट्रांजेक्शन वहां पे हुआ है, वो 10,000 का ट्रांजेक्शन आपका कौन सा ट्रांजेक्शन से, ये उधारी का है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपका है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस का एक्सेप्टेंस बायर देता है, ठीक है, 10,000 मैंने किया, बराबर अमाउंट है, इट शुड बी टेक द एश्योरेंस टू द दैट पर्सन, ये उसको खातिर देता है सेलर को कि आफ्टर सम डे आई विल पे योर मनी इन दैट पीरियड।
इस डेट को मैं आपको पैसा दे दूंगा फ्यूचर में। ए प्रॉमिस टू द सेलर, वो प्रॉमिस हो एक विपत्र द्वारा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज द्वारा, पीस ऑफ पेपर द्वारा उस कस्टमर द्वारा लिख एक्सेप्टेंस करके वो उसके सामने रखता है कि दैट डेज आई विल पे योर अमाउंट्स। इसका एश्योरेंस इसको मिलता है, इसको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, इसको एक खातिर हो जाती है, एश्योरेंस उसको मिलता है कि सम डेज आफ्टर ही विल पे दैट डेब्ट्स इन दैट डेट, उस डेट को वो देने वाला है उसका अमाउंट, एक एश्योरेंस उसको खातिर हो जाती है और इस तरह वो ट्रांजेक्शन वहां पे कंप्लीट हो जाता है। सो रिटर्न एक्सेप्टेड पे टू द डेब्ट स्पेसिफिक पीरियड, रिटर्न ऑर्डर इज एक्सेप्टेड बाय बायर sent to the seller is known as bill of exchange, उसे कहते हैं bills of exchange। So according to the section 5 of Negotiable Instrument Act 1881, 1881 का जो Negotiable Instrument Act आपका है, उसमें एक definition दी हुई है आपको, definition of bills of exchange की। He defined the definition of bills of exchange. A bill of exchange is an instrument in the return and containing an unconditional order signed by the maker, unconditional order signed by the maker, directing a certain person to pay on demand or future date a certain sum of money only or to the order of certain persons or to the bearer of instrument is known as negotiable instrument act. It is known as bills of exchange. So negotiable instrument means promissory note. You should be promised them. It is called वचन पत्र. Negotiable instrument is known as another one promissory note. एक promissory note ये होती है, एक वचन पत्र होता है। Bill of exchange और check payable either और order और bearer, जिस तरह चेक आपका होता है ट्रांजेक्शन के बैंकिंग ट्रांजेक्शन के, जब चेक यूज करते हैं बियरर चेक, उसी टाइप का रोल ये इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्ले करता है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल एदर टू ऑर्डर और बियरर, बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न एक्नॉलेजमेंट टू द डेट एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू पे द डेट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ बिल। A bill of exchange is generally drawn by the creditors, विक्रेता निकालता है, drawn by the creditors on his debitors, creditors debitors के ऊपर बिल पे ड्रॉन करता है, and should be accepted by the debtors, means buyer is accepted that bill, it is called bills of exchange. So bills of exchange कहा जाता है। So into this bills of exchange we have discussed some important concept again. In cash sales जो आप होता है, it is credit transactions we have seen to this buyer and seller के बीच में कैश होता है, क्रेडिट यहाँ पे होता है। In cash sales government currency is used of differing value of goods. In India we see रुपया, इंडिया के अंदर क्या है, रुपये से ट्रांजेक्शन होता है, इंडिया में रुपये, ये ट्रांजेक्शन आपका होता है करेंसी के बीच में। ये भी आपकी करेंसी, इट इज अ बियरर चेक, जस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज जस्ट ऑर्डर चेक, जस्ट लाइक ए बियरर चेक। इन इंडिया वी सी, इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या है, करेंसी आपकी क्या है, रूपी, रूपी क्या आपकी करेंसी, रूपी इंडिया के अंदर रूपी है करेंसी आपकी, जिसका आर इंडिया की करेंसी है रुपीज, रुपया। इन यूएसए, यूएसए का क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डॉलर, इसका डॉलर है, डॉलर इसका, डॉलर का साइन सभी को मालूम है, ये डॉलर, यूएसए का डॉलर, ये डॉलर यूएसए का। इन यूरोप का क्या है, यूरो, यूरोप का क्या है, यूरोप कंट्री का आपका करेंसी क्या है, यूरो, यूरोप का यूरो इसका करेंसी, उसका साइन कैसा है आपको मालूम है सभी को, यूरो साइन उसका, ये साइन उसका करेंसी का, जैसे इंडिया का रुपीज है, डॉलर का यस करके, यूरो, यूके का पॉइंट है यूनाइटेड किंगडम, उसका पाउंड, ये उसी करेंसी,
पाउंड का साइन कैसा है? यल टाइप, ये पाउंड। और जापान का ये, जापान का क्या है आपका? एन, उसकी करेंसी जापान का एन ट्रांजेक्शन है। इंडियन रुपीज, इन यूएसए डॉलर, यूरोप में यूरो, यूके में पाउंड, जापान में एन, इसकी करेंसी जापान की, जापान का एन से ये करेंसी ऑफ जापान। जापान का एन, यूके का पाउंड, यूरोप का यूरो, यूएसए का डॉलर, यूएसए का डॉलर है आपका, ये डॉलर का साइन है, यूरो का साइन, पाउंड का साइन एंड ये का साइन। Into this currency we pass our transactions into that country. It is used basic unit of exchange. It is used, इसका यूज कहां होता है? It is used as basic unit for exchange. As basic unit for, as a basic unit for exchange. As a basic unit for exchange. Basic unit for exchange. So into this topic we discuss bills of exchange. It is a promissory note, and mostly credit transactions we have discussed now into this bills of exchange. In the credit sales, buyer of goods agreed to pay the price of goods purchased within the fixed time after the date of transactions. After the date of transactions, in the credit sales, contractual relations are formed between them as creditors and debtors, buyer and sellers. In the future, such owing between them may be settled in cash or by bank check. So into this topic we have seen mostly credit sales. Credit transactions we have discussed now into this topic. In India, this instrument is called हुंडी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इंडिया में क्या कहा जाता है? हुंडी कहा जाता है। इन अवॉइड द सच पॉसिबिलिटी ऑफ डिले एंड डिफॉल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपकी करेंसी थी इंडिया की, यूरो की, यूके की। इनटू दिस